Okay, now if I am heating a liquid, will it be called as melting point? Yes or no? If I am heating a liquid, will it is called as a melting point? No. Okay. Heating a liquid will not be called as a melting point. It will be actually your boiling point. So next topic here will be excuse me. Liquid to gas change. That means boiling. Excuse me. Or you can say that vaporization. Okay. So the process in which a liquid substance changes into gas rapidly on heating is called boiling. Okay, so in this, what is happening? Again, there is a change of state take place. That means from liquid to gaseous, your substance is going to change. Okay, so the temperature at which a liquid boils and changes rapidly into a gas at atmospheric pressure is called as boiling point of the liquid. So what does it mean? Let's say I have a water in the container. Okay, this is a container and I have a water. And if I want to boil this water, so what is going to happen is I have to provide it certain amount of energy. Okay, so whatever the temperature is here at which this liquid starts getting converted into vapor at atmospheric pressure, that means at normal pressure, this normal environment is known as your boiling point of liquid. So in this case, if I talk about the example, boiling point of water is 100 degrees Celsius. Okay, so at 100 degrees Celsius, the particles of the liquid, that is water, is going to get converted into gaseous form. Okay, and of course different liquids have different boiling point. So next point you can write, different liquids have different boiling point. For example, boiling point of alcohol is 78 degree Celsius, and for water it is 100 degree Celsius, and for mercury is also liquid in nature, it is 357 degrees Celsius. Okay,
So what does boiling point signifies? Since different liquids have different boiling point, what does it signify? Tell me. What does it mean? As different liquids have different boiling point. Hmm. Good, Rohan. They are telling you about the, yes, Rohit. So basically, they are telling you about the how much force of attraction is present between the gas particles. Sorry, between the liquid particles. Okay. So here we can write down that the boiling point is the measure of the force of attraction between its particles. Okay, so if I say that water has a boiling point of 100 degrees Celsius and alcohol has a boiling point of 78 degrees Celsius, so that means that the particles of the water are held more tightly, or you can say that the force of attraction between the molecules of the water are way stronger as compared to the molecules of alcohol. Okay, so when a liquid is heated, it changes its physical state and becomes gas. Okay, लिखो, write down this. Let me know when you are done. Oh, sorry, it will be condensation. I'm so sorry. Shreya, have you done writing? Okay, fine. So next we will be talking about gas to liquid change. ठीक है, चेंज थोड़ा सा जो है
वो अपोजिट चेंज की हम अब यहाँ पे बात कर रहे हैं. Okay, suppose not like if you have cold water, okay, and you keep it outside of the freezer ऐसे बाहर रख दिया environment में, तो बॉटल के बाहर आपको कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं? Yes or no? You get to see some droplets outside the water bottle. So what is that? What from where those drops are coming? From the atmosphere. They are coming from the atmosphere. ऐसा तो हो नहीं रहा है कि बॉटल से कहीं थोड़ा थोड़ा पानी निकल के सरफेस पे आ रहा है, ऐसा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है. सो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, जो भी आपके पास इन्वायरमेंट में मॉइस्चर में सॉरी इन्वायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब वाटर वेपर्स ऑलरेडी अभी भी आप बैठे हुए हो, आपके इन्वायरमेंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है. बट अगर आप एक कोल्ड बॉटल वहाँ पे रख दोगे तो बॉटल का जो सरफेस है दैट इज कोल्ड, वो ठंडा है. तो जो भी इन्वायरमेंट के वाटर वेपर्स उस वाटर बॉटल के कांटेक्ट में आएंगे तो दे विल गेट कंडेंस्ड फ्रॉम, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया है, सो दे विल गेट कंडेंस्ड फ्रॉम गैसियस फॉर्म टू द लिक्विड फॉर्म. और इसकी वजह से आपको बॉटल के सरफेस पे यू विल ऑब्जर्व सम water droplets. Is that clear to everyone or not? So this process, that is the conversion of gaseous form into a liquid, is known as condensation. ठीक है, समझ में आया सबको? So here we will be writing as the process of changing a gas, या फिर बोल सकते हो आप, और वेपर्स to a liquid by cooling is called as condensation. Okay, so here the change of state has taken place. This leads to the change of state from gas to liquid. For example, here we will be talking about when steam, या फिर आप बोल सकते हो vapors, water vapors basically, when steam या फिर आपके पास water vapors is cooled, they get converted into water. Write on this. Now what is happening here? How this process is taking place? When the gas particles, या फिर आप steam बोल सकते हो, are cooled, they lose enough kinetic energy. Okay, kinetic energy lose करते हैं. So their movement slows down and they move closer to each other and start getting attached to each other and thus form liquid.
सो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, व्हेन यू आर कूलिंग दीज गैस पार्टिकल्स, तो उनकी एनर्जी कम हो रही है। जब आप उनको हीट करते हो तो एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। बट जब आप उसको कूल करते हो तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो जब आप उसको कूल डाउन कर रहे हो तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो उनके बीच का मूवमेंट भी कम हो रहा है। अब जब मूवमेंट कम हो रहा है तो पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे से अटैच हो सकते हैं। तो वो एक दूसरे से अटैच होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से उनका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। इट विल चेंज फ्रॉम gaseous state to liquid state. Okay, write down this. Done writing? Yes, ma'am. Okay. So let's talk about the change of state here also in the terms of kinetic energy. Okay, so I'm just making a box here. When I'm saying that boiling, so in the terms of kinetic energy, if I'm talking about, so what is exactly happening here? When you heat a liquid, it will gain kinetic energy, of course. If you can say that it will gain energy. Basically kinetic energy ही होती है. That means the particles are moving very fast. So उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है कि दे लीव द लिक्विड फेस, मतलब उनके बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक होने लग जाता है. ओके, दे आर मूविंग सो फास्ट दैट particles start going away from each other. And thus they change their state. ये भी लिख लो इसमें. And thus they change their state. So उनका जो मूवमेंट है वो इतना फास्ट हो जाता है कि लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके इट चेंजेस इट्स स्पीड एंड चेंजेस इनटू gaseous form. Write down this. Done writing? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay, so now let's talk about the fourth type of conversion, that is going to be your liquid to solid state. Liquid to solid change is known as freezing. Okay, now what is happening in the case of freezing? So it is basically the process of changing a liquid into a solid, okay, by cooling, and it is known as freezing. फ्रीजिंग का मतलब होता है सॉलिडिफिकेशन. जब आप लिक्विड वाटर जो होता है आपको फ्रीजर में रख देते हो और आफ्टर 4 to 5 आवर्स आप देखते हो कि वो पूरा सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वहाँ पे आप कौन सा प्रोसेस कर रहे हो? फ्रीजिंग कर रहे हो. आप ऑफकोर्स फ्रीजर में रख रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एट दैट केस. So here you can write down the process of changing a liquid into a solid by cooling is called freezing. Okay, for example, when water is cooled, it converts into ice. Okay, so अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो दैट मीन्स वाटर कौन से टेम्परेचर पे फ्रीज होना स्टार्ट होगा? टेल मी. The temperature at which water starts freezing is called as freezing point of water, which is 0 डिग्री सेल्सियस. सो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास जो भी वाटर है इट स्टार्ट्स फ्रीजिंग. राइट ऑन दिस. Shivans, I will tell you how the melting and boiling point are same. I'll tell you this. चलो अभी बता देते हैं. व्हाट इज इट? जैसे आप आइस को बाहर लेके रखोगे, फ्रीजर से बाहर निकालोगे, ओके, तो मान लो आपने इस कंटेनर में आइस को रखा हुआ है. जैसे ही बाहर के इन्वायरमेंट के टच में आएगा इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, है ना, यहाँ से वो मेल्ट होना चालू करेगा. बट अगर आप थर्मामीटर रखोगे यहाँ पे
और आप मेजर करोगे टेम्परेचर, सो इट विल स्टिल बी 0 डिग्री सेल्सियस। उसका रीजन क्या है? यू स्टिल हैव द आइस पार्टिकल प्रेजेंट हियर। ओके, तो अभी भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही सेल्सियस होता है, अनटिल एंड अनलेस आप पूरा का पूरा आइस आपका पहले तो मेल्ट हो जाए और उसके बाद आप उसको लीव कर दो थोड़ी देर के लिए, तब आप देखोगे कि धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो जब तक इसमें आइस पार्टिकल प्रेजेंट होता है, भले ही छोटा क्यों ना हो, इन दैट केस ऑल्सो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइस, वहां पे आइस अभी भी प्रेजेंट है। ओके, तो वो स्टार्ट तो 0 डिग्री पे ही मेल्ट करना चालू कर देता है। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। When a liquid is freezed, its particles lose energy, due to which they move slowly. So if the liquid is cooled enough, the particles stops moving. At this stage, liquid becomes सॉलिड। सो व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रीजिंग? जब आप उसको फ्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो एनर्जी कम हो रही है। और जब आप बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो एनर्जी इतनी कम हो रही है कि पार्टिकल्स आपके जो है वो मूव ही नहीं कर रहे हैं। अब जब पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, तो वो एक दूसरे से एकदम प्रॉपरली अटैच हो जाते हैं, और जब प्रॉपरली अटैच हो जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सॉलिड में। ओके, चलो लिख लो ये। Yes, Raghavi, solid can also directly turn into gas. That is known as sublimation. We'll talk about it. Yes, dry ice also, Shreya. We'll talk about it अभी। Sublimation की भी बात करेंगे। लिखो अभी ये। Done, ma'am. गैसेस को डायरेक्टली फ्रीज इसलिए नहीं करते, क्योंकि गैसेस जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। तो आप डायरेक्टली गैसेस को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो सॉलिड में। उनका जो प्रोसेस होता है, पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए होता है, और सॉलिड तक लाने के लिए तो हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं है कि हम लिक्विड के So बाद what? सॉलिड तक तो हम ला ही नहीं पाते उसको। Can you zoom out? ठीक है, Can you please zoom out one more? solids have high force of attraction between themselves, no रोहित? आप थोड़ी किसी, आप भी तो सॉलिड ही हो ना बाहर से, तो क्या आप किसी और सॉलिड पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हो?
सबका अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है, दूसरे का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है। तभी तो हमने बात किया था कि जब हम डिफ्यूजन की जब बात करी थी कि जब हम दो मेटल्स को रख दे बहुत टाइम के लिए बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स, सो देन दे विल फ्यूज विद ईच अदर, तब वो जाके फ्यूज होंगे एक दूसरे से फॉर मिलियंस। उसको इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो सॉल अपने अपने पार्टिकल्स के बीच में इतना ज़्यादा हाई है कि किसी और के साथ अटैच होने में उसको बहुत टाइम लगेगा, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो आप अगर बुक को अपने टेबल पे रखोगे तो उसको ऐसे छेड़ छेड़ देते हो ना, यहाँ वहाँ कर देते हो, तो उनके बीच का जो भी अट्रैक्शन है वो लूज हो जाता है। तो उसके लिए आपको उसको बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो अटैच हो पाएंगे, बिकॉज सॉलिड के लिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वे टू हाई, है ना। ओके मैम। मेरे पास ये ब्लॉक है और दो ब्लॉक्स है मेरे पास सॉलिड के। तो आई डोंट नो, माय लैपटॉप इज सो स्लो। ओके, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है। इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है उनके पास अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनका अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट है। जब आप इनको ऐसे साथ में टच करके रख रहे हो तो ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज करके इसके साथ अटैच हो जाए, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, अपने आप थोड़ी हो जाएगा वैसा। तो वो एनर्जी उनको एनवायरनमेंट से नहीं मिलती है, इसीलिए कोई भी सॉलिड पार्टिकल नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशंस पे फ्यूज नहीं होगा। चलो, लेटेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट? हिडन, लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन। ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन लिखा रही हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। द हीट एनर्जी which has to be supplied to change the state of a substance is called latent heat. Next point, latent heat does not raise the temperature. Next point, latent heat we supply is used up in overcoming the forces of attraction between the particles of a substance during the change of state. पहले लिखो फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। Now latent heat is of two types.
latent heat of fusion and दूसरा latent heat of vaporization. Okay, it is a very important topic. Write down this first, then I will explain everything with the help of example. जो भी लिखा है. Done writing? Yes, ma'am. Okay, fine. So we will we will try to understand this with the help of individual types, that is latent heat of fusion. So first we will talk about okay. So first of all, we have to understand that what is what process is basically happening in latent heat of fusion. Okay, so the heat required to convert solid into liquid is called latent heat of fusion. Okay, now let's say I am taking this container. Okay, this container has small particles of ice, like not that small, ice cubes, you can say that it has ice cubes. Okay, now I am heating this ice cube. ओके यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंड है. स्टैंड से यहाँ पे थर्मामीटर लगा हुआ है. ओके, सो दिस इज आवर थर्मामीटर. और यहाँ से आप इसको बर्न कर रहे हो. ठीक है. सो अब जब हमने इसको हीट करना चालू किया तो हम ये देखेंगे कि बहुत टाइम तक, मतलब जब तक आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जा रहा है, तब तक थर्मोमीटर का टेम्परेचर जो है वो कितना है, इट इज 0 डिग्री सेल्सियस ओनली. ओके, जब आप हीट कर रहे हो तो आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. मेल्ट करके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो वाटर में. और अगर मैं टेम्परेचर मेजर कर रही हूँ, हर एक मिनट में मैं उसको मेजर करूँ, तो टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है. तो जो आप हीट कर रहे हो वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज इट गोइंग? व्हाट इज हैपनिंग टू द हीट हियर? आप हीट तो प्रोवाइड करे जा रहे हो, बट फिर भी थर्मामीटर का टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा? No, Sampath, it is not absorbed by the size. Shivansh and Rohan, you are correct. So what is happening here? As ice is getting converted into water, तो इस प्रोसेस के लिए भी उनको क्या चाहिए, एनर्जी.
आइस के पार्टिकल्स जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं हीट गेन करके, तो उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए। ओके, तो जब तक सारा का सारा आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक जो भी आप हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आप एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हो, वो कौन यूटिलाइज कर रहा है? सॉलिड आइस टू गेट कन्वर्ट इनटू वाटर। तो इस वजह से आपके पास टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता, और इसी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो क्या रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ऑल्दो टेम्परेचर इंक्रीज, आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, बट देयर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑल द हीट इज consumed by the ice particles to get convert into water, or you can say that liquid। तो अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं, एक सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं, तो उसके लिए भी उनको एनर्जी चाहिए ना, तो जो भी आप हीट कर रहे हो वो एनर्जी आइस पार्टिकल्स ले रहे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? सबको समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। रेज अ हैंड इफ एवरीवन अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है। Okay, so here we will write down now. So write down, on heating, ice starts melting. To water. As more heat is given, more ice melts. And the reading on thermometer remains same, that is 0 degree Celsius. As long as there remains a little ice in the beaker, the temperature does not rise. And it remains constant at 0 degree Celsius. So the heat is getting consumed in converting the change of state। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए हीट जो है आपका सारा का सारा यूज हो जा रहा है। एंड आफ्टर दैट, जब पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो गया, उसके बाद अगर आप हीट करोगे, देन थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे क्या करने लगेगा? राइज करने लगेगा। तो यहाँ से हमको एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखनी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की।
that is the latent heat of fusion of a solid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of the solid to liquid without any change in the temperature. ओके, सो ये डेफिनेशन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. अब हम लोग 500 ग्राम अगर आइस लेंगे तो उसका लेटेंट हीट अलग होगा. तो जैसे जैसे हम मास बढ़ाते जाएंगे लेटेंट हीट बढ़ते जाएगा बिकॉज अमाउंट आपका चेंज हो रहा है. तो हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए फिक्स्ड अमाउंट रख दिया है कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जिसका क्वांटिटी हम 1 kg ले रहे हैं तो 1 kg सब्सटेंस को जब हम हीट कर रहे हैं तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है कि वो आपके पास सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर. मतलब उस बीच में आपके पास टेम्परेचर का जो चेंज है वो नहीं होना चाहिए. दैट इज नोन एज योर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, फॉर एग्जाम्पल in the case of ice, latent heat of fusion is 3.34 into 10 raised to the power 5 joules per kg. मतलब अगर मैं 1 kg आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो उसके लिए जो लेटेंट हीट कंज्यूम होगा वो कितना होगा 3.34 into 10 raised to the power 5. Write down this. हाँ शिवांश, तो रूम पे भी रखोगे तो रूम पे भी वो एनवायरनमेंट से एनर्जी ले रहे हैं ना. आपने जब उसको फ्रीजर से बाहर निकाला वहां पे टेम्परेचर बहुत कम था, आपने एनवायरनमेंट में रखा तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको एनवायरनमेंट से हीट मिल रहा है. ओके, राइट डाउन दिस जल्दी से. डन राइटिंग. अब जैसे आपने अपने हैंड में आइस को होल्ड किया हुआ है. ओके, तो जिस पोर्शन पे आपने हैंड पे आइस को होल्ड किया हुआ है वहां पे आपको बहुत ज्यादा कोल्ड फील होता है और बाकी बॉडी में कोल्ड फील नहीं होता. सो व्हाट, और वहां से आपके पास आइस जो है वो मेल्ट भी होने लग जाता है. तो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग देयर एग्जैक्टली? कैन एनीवन टेल मी how the ice in your hand starts melting? My body's heat is getting used in melting the ice. तो जैसे आपने अपने हैंड्स में आइस को रखा तो उस पर्टिकुलर जगह से जहाँ पे आइस रखा हुआ है वहां से वो क्या करता है, हीट कंज्यूम करता है.
ठीक है। और जब वहाँ पे हीट कंज्यूम कर रहा है वहाँ से, तो आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग। तो अभी भी जब तक भी आप आइस को अपने हाथ में पकड़ोगे, तो ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा देर तक आइस को पकड़ो तो आइस का टेम्परेचर कम हो जाएगा, आपको ठंडा लगना कम हो जाएगा, नहीं। क्योंकि आप आइस को वहीं पे होल्ड किए हुए हो, जब तक आइस आपके हाथ में है तब तक यू विल फील द सेम टेम्परेचर, यू विल फील द सेम पेन। जब पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, देन आपको थोड़ी देर बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होगा। क्योंकि जब तक आपने आइस को अपने हाथ में पकड़ा था तब तक वहाँ पे टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। और वो हीट कहाँ से ले रहा है, वो आपके स्किन से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, बिकॉज आपके बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और जिस पोर्शन से वो हीट एब्जॉर्ब करता है वहाँ पे आपको कैसा फील होगा, कूल फील होगा। ओके। और क्योंकि वहां से हमारे टेम्परेचर कम हो रहा है ना, आइस टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वहां पे हमारे हैंड में टेम्परेचर कम हो रहा है, इसीलिए वहां पे हमको कैसा फील होता है, कोल्ड फील होगा। ओके फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसमें भी सेम चीज होता है। मैं ऐसे कंटेनर लिया मैंने, इसमें प्रेजेंट है वाटर, इसको हम यहाँ से हीट करना है। स्टैंड पे कंटेनर रखा हुआ है, यहाँ से हमने इसको थर्मामीटर अटैच किया हुआ है। ओके। अब जब हम इसको हीट करेंगे, ओके, तो धीरे धीरे टेम्परेचर जो है थर्मामीटर का इंक्रीज होगा। ओके, जैसे जैसे आप इसको हीट करोगे वैसे वैसे थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है। जैसे ही थर्मामीटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, तो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। अब जब आप पानी बॉईल करते हो तो हम क्या बोलते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आप पानी को ऐसे ही गैस स्टोव पे रख दो और वो कंटिन्यूसली बॉईल हुए जा रहा है, तो आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद उसमें कुछ भी बचता नहीं है, पानी का जो अमाउंट है धीरे धीरे कम हो रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, 100 डिग्री से 120 हो रहा है, 130 हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है वहां पे? इज दैट हैपनिंग when you boil water in a container in your kitchen home, घर पे? नहीं। ठीक है, तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम जितना ज़्यादा पानी को बॉईल करेंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे आके स्टक हो जाता है आपका टेम्परेचर, अब उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो आप स्टिल उसको हीट किए जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि बाकी जो भी आप हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हो वो कहाँ जा रहा है? ओके, वेयर इज इट गोइंग? तो वो लिक्विड पार्टिकल्स को अब गैसियस पार्टिकल में चेंज करने के लिए वो सारा हीट कंज्यूम हो जा रहा है। ठीक है, तो वो हीट, ये हीट ऐसा है कि आप कंज्यूम कर रहे हो बट आपको थर्मोमीटर पे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, लेटेंट मतलब हिडन हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वो जो आपके पास जो भी आप एक्स्ट्रा हीट अब प्रोवाइड करोगे, एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही टेम्परेचर आपका रीच कर गया, तो उसके बाद आप जो भी हीट दे रहे हो, दैट हीट इज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड इट इज बीइंग यूज्ड टू कन्वर्ट, या फिर यू कैन से दैट टू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फॉर्म। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? तो 100 डिग्री सेल्सियस तक आपको थर्मामीटर में चेंज दिखाई देगा। इसीलिए वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो वाटर के पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको इतनी एनफ हीट मिल गई है कि अब वो लिक्विड से कन्वर्ट होने लगेगा गैसियस फॉर्म में। ऐसे ही अगर मैं अल्कोहल सब्सटेंस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है रोहन, अब जैसे मैं अल्कोहल ले रही हूँ, अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस होता है,
तो अब अल्कोहल को हम ऐसे क्यों नहीं बोलते कि वो 100 डिग्री पे ही जाके क्यों नहीं मेल्ट हो रहा है या फिर बॉईल हो रहा है, क्योंकि उसके खुद के ही अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर का ज़्यादा होता तो वो 100 से ऊपर चले जाता, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता तो उससे कम हो जाता। वो तो सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। Okay, so here write down at the temperature of 100 degrees Celsius, water boils and starts changing into steam. As more heat is given to water, more steam is formed. But the temperature remains constant. At 100 degrees Celsius. So once the water starts boiling, the heat is consumed to change the state from liquid to water vapors. Okay, so अब हम proper definition की अगर बात करें, so it is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of liquid to vapors, या फिर बोल सकते हो गैस, without any change in temperature. Write down this. For example, you can write down for water it is 22.5 into 10 raised to the power 5 joules per kg. Write down this. यस समर्थ, ऑफ कोर्स अगर आप वाटर में कोई अदर सब्सटेंस ऐड कर दोगे तो उसका लेटेंट हीट एंड एवरीथिंग सब चेंज हो जाएगा, इट विल बी अफेक्टेड फॉर श्योर। ये हम सिर्फ प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। Done, ma'am. Okay, so now if I ask you a question,
अगर किसी इंसान को कुछ बर्न हो जाता है, ओके, तो बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा बर्न होगा, मतलब एकदम गर्म पानी से ज़्यादा बर्न होगा या स्टीम से ज़्यादा बर्न होगा? स्टीम। क्यों? वाई? वाई दिस विल हैपन, टेल मी। वाटर से ज़्यादा बर्न होगा या स्टीम से ज़्यादा बर्न होगा? अगर स्टीम से ज़्यादा बर्न हो रहा है तो क्यों, और वाटर से ज़्यादा बर्न हो रहा है तो क्यों? टेल मी, नो वन नोज? Okay, it has latent heat in it because temperature is too high. No, Shreya, not because of temperature. Steam में no, Samarth, it's not about kinetic energy. शिवांश बोल रहा है कि बोथ का सेम होगा, नहीं। ओके, अगर हम बर्निंग की बात करें तो बर्निंग विद स्टीम इज वे सीवियर दैन द बर्निंग विद वाटर, बॉइलिंग वाटर। ओके, इसका रीज़न ये है कि जब भी आप वाटर को चेंज कर रहे हो स्टीम में तो वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है। ओके, और स्टीम क्या करेगा, और जब स्टीम को हम कंडेंस करते हैं तो वाटर फॉर्म करता है। ओके, तो इन दोनों के ही केस में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी का कंजम्पशन और रिलीज हो रहा है। मतलब आप जब वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जब स्टीम को वाटर में कर रहे हो तो लेटेंट हीट रिलीज करेगा। ऑफ कोर्स जो भी उसने हीट गेन किया था वो रिलीज करेगा, क्योंकि बैक टू क्या आ रहा है, वाटर। ओके, तो आपके पास जो भी बर्न कॉज हो रहा है स्टीम की वजह से वो काफ़ी सीवियर होगा एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आपके स्किन पे स्टीम लगा तो आपके स्किन पे टेम्परेचर जो है वो कम होता है ना। स्टीम का टेम्परेचर काफ़ी हाई है और आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी लो है स्टीम के कंपैरेटिवली। तो जैसे ही स्टीम आपके बॉडी के टच में आता है वो कूल डाउन होने की कोशिश करता है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया। अब जब कूल डाउन होने की कोशिश करेगा तो लेटेंट हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा हीट रिलीज हो रही है आपके सरफेस पे स्टीम को लगने की वजह से, वो आपको और एक्स्ट्रा बर्न करता है। और अगर बॉइलिंग वाटर हो, मतलब पानी बहुत गर्म हो, तो उसके पास लेटेंट हीट नहीं प्रेजेंट होती, तो बर्न आपको दोनों से ही होगा। बट अगर हम सीवियर बर्न की बात करें तो सीवियर बर्न जो है आपको वो स्टीम से ज़्यादा होगा, क्योंकि इट हैज़ द हिडन हीट प्रेजेंट इन इट। अब हिडन हीट प्रेजेंट होता है जो हमको समझ में भी नहीं आता, वो हमारी बॉडी से टच होने पे हीट रिलीज करता है, एक्स्ट्रा हीट, और उस एक्स्ट्रा हीट की वजह से हमको ज़्यादा बर्न होता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो जैसे ही आपके पास स्टीम आपके हाथ के टच में आएगा, इट इज गोइंग टू रिलीज 22.5 इंटू 10⁵ जाउल्स पर केजी, इतना एनर्जी वो रिलीज करता है एक्स्ट्रा। और इस एक्स्ट्रा एनर्जी के रिलीज होने की वजह से आपको ज़्यादा बर्न फील होगा, बर्न जो है वो सीवियर होगा। So here you can write down the burn caused by steam is much severe as compared to the burn caused by boiling water, as steam, या फिर as नहीं, because लिख दो, because when steam touches our skin, to get
converted into liquid, it releases latent heat, which burns more severely. Write down this. Done writing? Okay. So next topic we will be talking about is sublimation. ओके, सो आप अगर आइस को, जो कि आपके पास सॉलिड है, उसको अगर हम मेल्ट करेंगे, सो इट विल फर्स्ट गेट चेंज इनटू लिक्विड एंड देन और हीट किया तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. ठीक है, तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर वेपर में कन्वर्ट होता है तो इट विल ऑलवेज बीच में एक स्टेट आएगा लिक्विड, बट देयर इज स्टिल a lot of solid substances which gets directly converted into vapors. ओके, डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड का स्टेट आता ही नहीं है बीच में. सो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सब्लिमेशन. ओके, सो व्हेन solid directly changes into vapors on heating, and vice versa means वेपर्स वापस से सॉलिड में अगर चेंज हो जाए. ओके, ब्रैकेट में लिख सकते हो वेपर्स इनटू सॉलिड. ओके, then it is known as sublimation. Then it is known as sublimation. Okay, so what happens here? Solid form get converted into vapors directly. अगर आप हीट करोगे तो डायरेक्टली वेपर्स में आ जाएंगे, अगर आप कूल करोगे तो डायरेक्टली सॉलिड में आ जाएंगे. अब डायरेक्टली सॉलिड में आने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो बहुत ही कम है. मतलब इतना हम रैंडमली ऑब्जर्व नहीं करते हैं बिकॉज ये प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट होता है. बट अगर हमको डिफाइन करना है तो हम इसी तरीके से उसको डिफाइन करते हैं. ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? अब आपने सब्लिमेशन को कोई एक एग्जांपल कहने. ओके, अब आपने टीवी में शोज देखे होंगे जहाँ पे आप देखते होंगे कि जो म्यूजिशियंस होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, जहाँ पे वो लोग म्यूजिक प्ले करते हैं, वहाँ पे धुआं धुआं सा दिखाई देता है ना? हैव यू सीन इट, ऑब्जर्व्ड इट और नॉट? तो वो किसकी Yes, ma'am. है? वहाँ पे क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली? वहाँ पे वो लोग रख देते हैं ड्राई आइस. ओके, ड्राई आइस इज नथिंग बट योर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड.
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाई किया हुआ होता है। तो उसको जैसे आप एनवायरनमेंट में रखते हो तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाता है डायरेक्टली, और इसी वजह से आपको जो वेपर्स है वहाँ पे कुछ धुआं धुआं टाइप का दिखाई देगा, ऑब्जर्व होगा, एंड दैट इज योर व्हाट व्हेन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गेट्स कन्वर्ट इनटू वेपर्स। ऐसा ही आपके पास जो आइसक्रीम के आपके जो कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर आप देखते हो कि कुछ आइस जैसा रखा होता है, इट्स एक्चुअली नॉट आइस, इट इज योर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। तो ड्राई आइस जो है वो ज़्यादा टाइम तक ठंडा रहता है, इसीलिए हम आइस की जगह ड्राई आइस को रखते हैं। अंडरस्टूड? तो आपके पास जो फ्रीजर में जो बड़े बड़े आइसक्रीम कंटेनर्स जिसमें स्टोर किए जाते हैं, दैट डज नॉट हैव आइस, दे हैव ड्राई आइस, दैट इज योर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। Okay, so next class में we will be continuing from here.